Okay, G, today we are going to discuss about what is difference between human language and animal communication. No doubt, it's quite clear to us that human language is more or less is a unique phenomena. As I've already told you people that this unique feature is only bestowed to human beings. There is no other species which enjoys, other than human beings, which enjoys this particular, you can say, uh, blessing of Almighty. अवलीन तो जो लिंग्विस्ट हैं वो तो जैसा कि मैंने एडवर्ड सेपर की डेफिनेशन जब आपके साथ शेयर की थी तो उस वक्त भी मैंने आपको बता दिया था कि एडवर्ड सेपर जैसे लोग टोटली डिस्कार्ड कर देते हैं कि दैट्स animals do have some sort of language. They totally discard. Rather, they say that animals do not have, people like Edward Shepard, animals do not have language. Yes, they say that they communicate, but when we go through the definition of Edward Shepard, he says if communication. कि अवलीन तो वो कम्युनिकेशन मानने को भी तैयार नहीं है और साथ में इफ लगाकर उसके ऊपर भी डाउट का इजहार किया जाता है. सो बहरहाल जो मोस्ट एनिमल्स हैं have inter and intra species communication systems to communicate one another, जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं. कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो एग्जिस्ट करता है और वो अपनी बात जो है वो कह सकते हैं. They cry, they hoot, they beat, they dance, they coo. It means के ये कॉमन फीचर तो दोनों में मौजूद है कि there exists communication because of sound signals. इस बात से कोई इनकार नहीं कि sound signals play a vital role in communication process. We cannot ignore this thing. This is an ultimate reality कि ये बात साउंड सिग्नल्स वाली जो है वो करेक्ट है. अब ये जो
नॉइसेस हैं जो ये जिसके जरिए ये कम्युनिकेट करते हैं, ये असल में अकम्प्लिश करती हैं द सेम पर्पस एज ह्यूमन लैंग्वेज। जैसे जो साउंड सिग्नल्स है वो जिस तरह से मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस, ह्यूमन बीइंग्स के जो साउंड सिग्नल्स हैं वो कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं। वी डू ऑब्जर्व द सेम साउंड सिग्नल्स are conducted, or you can say take place take place during animal communication. In this context, if someone asks you what separates humans from other animals, तो हमारे ज़हन में फौरी तौर पर सबसे पहला जो जवाब होएगा वो लैंग्वेज होगी कि this is actually language which separates human beings from other animals. कि इंसानों को जानवरों से जो सेपरेट करती है वो यही लैंग्वेज है। And I was already speaking that so fundamental to human life, language basically, so fundamental that it's hard to imagine what life would like without it. कि इसके बगैर जिंदगी कैसी होगी, क्यों कर होगी, ये बहुत मुश्किल है। और in fact, the original term for language referred to it as a part of body, as blood runs in your veins. Like what language runs in the veins of society. And we must know that as blood stops within a body, the body ceases to exist. Likewise, as language dies in a society, the society ceases to exist. So, the original term for language referred to it as a part of body, and the term basically derived from Latin word lingua. ये लतीनी जुबान के लफ्ज लिंगुआ से लिया गया है जिसका मतलब टंग है। So meaning tongue. So Barnett highlights the inseparability of language from man when he says verbal communication is the condition of the existence of human society. जो verbal communication है is a condition of the existence of human society. यानी कि human society जो है वो मौजूद है, तो वो किस वजह से मौजूद है? There is an only, you can say, condition, that is language. And if there is no language, then ultimately there would be no human society. But at the same time, other animals also communicate. And I'm telling you people that your cat may let you know when it's hungry. Ants use phonemes and sound to indicate social status and distress. Bees dance
to tell one another where to find honey. कि बी डांस जो है वो बड़ा मशहूर है कि जब वो मुतवज्जो कर लेती हैं मक्खियों को, बाकी अपनी बीज को, कि यहाँ पर नेक्टर जो है वो मौजूद है. And chimpanzees can learn sign language. चिंपैंजी जो चिंपैंजीज हैं वो भी मतलब जो है वो साइन लैंग्वेज जो है वो नो डाउट जो है वो उसको सीख सकते हैं. So when we think of language is a way of setting ourselves apart, what is about our language that is different, and then how other animals communicate. कि दूसरे एनिमल्स जो है वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं. तो already I was talking you people about Edward Sapir's definition regarding language, and I told you people in a straightforward way that first of all, what does he say? Animal communication, if communication. First of all, ये जो if communication है, ये उसने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, that he is not ready even to consider it communication. और फिर दूसरे नंबर पर वो क्या कहता है कि मान लें कि ये कम्युनिकेशन है. चलो जी, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो एनिमल हैं वो कम्युनिकेट करते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. तो ये क्या है? As is brought about by involuntary, not voluntary, rather involuntary. We the human beings voluntarily, you can say, utter words according to our desire, but they do utter, you can say, sounds involuntarily, and those are mere instinctive cries. What are those? Instinctive cries, जो जेनेटिकली उनके अंदर ये बिल्ट इन क्राइज हैं. और यही वजह है कि अगर आप उन क्राइज को, अगर किसी भी जानवर को अपने पेरेंट्स से, ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपसे बात कर रहा था, कि अगर उसको अपने पेरेंट्स से जुदा कर भी दिया जाए तब भी वो वही क्राइज बोलेगा जो क्राइज उसके माँ बाप जो है वो बोल रहे हैं या उसके एंसेस्टर्स बोलते रहे. इंसानों और जानवरों में लैंग्वेज या कम्युनिकेशन के एतबार से जो बड़ा डिफरेंस आता है कि जियोग्राफिकली अगर आप देखें तो जो एनिमल कम्युनिकेशन है ये पूरी दुनिया के अंदर एक जैसी है. ये नहीं होगा कि अमेरिका का गधा इंडिया के गधे से बिल्कुल मुख्तलिफ हाँकता हो, ऐसा नहीं होगा. या ऑस्ट्रेलियन गाय जो है वो बिल्कुल अलग ही कम्युनिकेट करती हो ईरानी गाय से, या फिर अफ्रीकन जो हाथी है उसकी साउंड श्रीलंकन हाथी से बिल्कुल डिफरेंट है. तो ये उनके अंदर असल बात जो समझाने वाली है कि ये सब कुछ इनके अंदर इंस्टिंक्टिवली मौजूद है. Those are called instinctive cries. That's why we do not call it language at all. In our senses, एडवर्ड सैपर कहता है कि वो लैंग्वेज नहीं है. तो मेन डिफरेंस आपको कहां पर मिलेगा?
तो यहां एक्चुअली जो आज का सेशन है इसमें असल पर्पस यही है कि कम से कम हम डिफरेंशिएट कर सके कि ह्यूमन लैंग्वेज और एनिमल कम्युनिकेशन जो है उनमें पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्या है। सो बहुत सी चीजें उसमें मतलब कही जाती हैं, जहां पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनका तस्करा मैं आपके साथ मतलब करने लगा हूं कि ये लार्जली जो प्रॉपर्टीज हैं लाइक ड्यूअलिटी, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपके साथ बात कर चुका हूं, क्रिएटिविटी, डिस्प्लेसमेंट, इंटरचेंजेबिलिटी, कल्चरल ट्रांसमिशन, आर्बिट्रेरीनेस एंड बायोलॉजी, ये ह्यूमन लैंग्वेज के साथ मतलब एक प्रोमिनेंट फीचर हैं और यही जो है वो आगे जाके इसी से हम आसानी से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं एनिमल कम्युनिकेशन को। तो सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो साउंड सिग्नल्स का है, दैट इज यूज ऑफ साउंड सिग्नल्स। साउंड सिग्नल्स नो डाउट सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एक कम्युनिकेशन का सोर्स है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इट वर्क्स इवन व्हेन देयर इज नो लाइट। डार्कनेस के अंदर भी यह काम करता है। इसको डिस्टेंस से यूज किया जा सकता है। इस हवाले से वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू मीडिया कि हम थाउजेंड्स किलोमीटर से भी हम लोग जो है वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये सिर्फ साउंड सिग्नल्स का कमाल है। हमारे आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो इस हवाले से अहम तीन किरदार अदा करते हैं, जिससे नेचुरली ऐसा होता है कि हम इंसान जब एक वक्त में कई काम कर रहे होते हैं लेकिन हमारे जो साउंड सिग्नल्स हैं वो फिर भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। वेरी you can say simple way, I can tell you that even when you are working in your kitchen, when you are working in your office and you are doing some you can say assignment and you want to communicate with some fellow, you can even do so without any hurdle. There is no need to engage your whole body for the purpose of communication, for the purpose of transmission of sound signals. And we do know that hardly ever there is a link between a signal and the message, कि इनके दरमियान आपस में कोई लिंक मौजूद नहीं होता, हार्डली। It happens just with onomatopic words such as bang bang, quack quack, creak. जबकि इंसान जो है वो इस करेक्टरिस्टिक्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जब आप जानवरों की बात करते हैं तो दे डू आल्सो कम्युनिकेट थ्रू देयर साउंड सिग्नल्स, लाइक क्रैब्स कम्युनिकेट बाय वेविंग देयर क्लॉज एट वन अनदर, कि वो
कम्युनिकेट करते हैं कि अपने क्लास को, दे यूजुअली व्हाट, दे वेव। बीस का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि बी डांसिंग is a very important factor in communicating ideas, in communicating, you can say, or bee dancing create sound, और वो साउंड जो है वो बाकी बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो इंसान बिल्कुल इस तरह से नहीं, जैसा कि मैं अभी आपको इंसानों की मिसाल दे रहा था कि जिस तरह से मंकीज, डॉल्फिन, बर्ड्स, हॉपर, ग्रॉस हॉपर जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं विद द ह्यूमन बीइंग्स टू डांस। हमारे अंदर ये सलाहियत बहरहाल मौजूद है, और हमारी जो सिंबल्स हैं, आई टोल्ड यू पीपल दैट दीज सिंबल्स आर, यू कैन से, ये हाईली मतलब जो है वो, आई मस्ट से यू पीपल कि ये सारी की सारी कॉम्प्लेक्स हैं, आर्बिट्रेरी हैं, ऑथेंटिक हैं, जबकि जानवरों की समवट साउंड जो है वो इम्बिगुअस। हम अपनी साउंड्स को एसिमिलेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और उससे मल्टीपल मैसेजेस जो है वो कन्वे कर, लेकिन जब बात आएगी एनिमल कम्युनिकेशन की, तो यहां पर ये क्लियर है, ये वाजिया है कि एनिमल कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास जो एक तो असिमिलेशन कनेक्शन प्रोसेस नहीं है, कि एनिमल्स के पास कनेक्शन प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता। हमने कभी किसी एनिमल को 2 3 4 साउंड जो है वो इकट्ठी करके बोलते देखा हो? इट नेवर हैपेंस टू अस। तो यहां जो सिंबल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा ऑथेंटिक हैं, साउंड सिग्नल्स जो हम यूज करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी जानवर ने क्या किया हो कि 2 3 साउंड इकट्ठे मिलाकर, जैसे हम इंसान जो है वो एक नई साउंड प्रोड्यूस कर दी, ऐसा नहीं हुआ। दूसरे नंबर पर जो पॉइंट मौजूद है दैट इज ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी से मुराद यहां पर डिस्टिंक्टिव साउंड्स हैं जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जिनको हम मतलब जो आपके फोनीम्स कहलाते हैं। एंड इन माय प्रीवियस लेक्चर्स आई वाज टेलिंग यू पीपल दैट देयर आर राउंड अबाउट 44 फोनीम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें से 24 कॉन्सोनेंट्स हैं और 20 जो हैं वो आपके वॉल्स हैं, और एक जगह पर 5 एडिशनल वॉल्स भी ऐड किए जाते हैं, तो एक जगह पर 49 भी कहा जाता है अगर ट्रिप्थॉन्ग ऐड कर लें। जबकि एनिमल्स के पास जितनी भी साउंड्स हैं वो सारी की सारी स्टॉक ऑफ बेसिक साउंड्स का है, और ये स्पीशीज टू स्पीशीज जो हैं वो वेरी करती है। मसलन अ काउ हैज फ्योर देन 10, एक गाय के पास फ्योर देन 10 10 से कम साउंड्स हैं। चिकन अप्रोक्सीमेटली 20, fox over 30, and like what gorillas and chimpanzees,
लेकिन वो सारी की सारी बेसिक साउंड्स हैं। और ज्यादातर जानवर, अगर आप किसी को ये मतलब वो जानवर आप देख लें तो एक वक्त में वो एक ही साउंड एक दफा प्रोड्यूस करता है। अगर आप उसको कहेंगे कि रिपीट करे तो परहैप्स वो रिपीट ना कर पाए। और यही वो उनके पास बेसिक स्टॉक ऑफ साउंड है जिसके जरिए वो अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन बेसिक साउंड्स के जरिए आखिर कितनी कम्युनिकेशन जो है वो की जा सकती है, जबकि हमारे पास ड्यूअलिटी पैटर्निंग है, डिस्टिंक्टिव साउंड्स हैं, फोनीम्स हैं जो कि आर्बिट्रेरी हैं। नो डाउट हमारे फोनीम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली मीनिंगलेस हैं, लाइक वर्ड बा, ट, ग, ए, उ, ये सारे मीनिंगलेस हैं। लेकिन हम इंसान इन साउंड्स को एक स्ट्रिंग में प्रो सकते हैं, एक स्ट्रिंग में इकट्ठा कर सकते हैं, और infinite ways of number to create meaning via words and sentences, infinite number of ways to create। और दुनिया के हर खित्ते का इंसान जो है वो अपनी मर्जी के वर्ड्स एंड सेंटेंसेस जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो जो प्राइमरी डिफरेंस है इज नाउन एज ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्निंग और स्ट्रक्चर। दुनिया के अंदर आप दुनिया की जितनी भी जुबानें देख लें, कल भी प्रीवियस लेक्चर में बात हो रही थी, इनके पास फिक्स फोनीम्स हैं। फिनिट फोनीम्स के साथ, फिनिट साउंड्स के साथ इनफिनिट मैसेजेस जो हैं वो कम्युनिकेट किए जा सकते हैं। तो इनसे मॉर्फीम्स बनाए जाते हैं, स्मॉलर यूनिट ऑफ साउंड्स जो कि मीनिंगफुल होते हैं। और लैंग्वेज की ये जो पैटर्निंग है जो कि आपको ह्यूमन लैंग्वेज में नजर आती है, ये एनिमल कम्युनिकेशन में आपको नजर नहीं आएगी। एनिमल कम्युनिकेशन ऐसी ताकतवर नहीं है। एनिमल, अगर आप देखते हैं कि सपोज हमारे पास एक पूरा पैटर्न एग्जिस्ट करता है, आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये 4 लेटर्स जो है वो आपके साथ अगर शेयर कर दिए जाएं तो आप इनसे लिमिटेड वर्ड्स ही बना पाएंगे। लाइक आप इनको स्लैब सॉरी एक ऑर्डर के साथ आप इनको कनेक्ट करेंगे तो आप इनसे अल्फाज जो बना सकते हैं, लाइक स्लैब है, लैब बना सकते हैं, फिर उसके बाद आप बाल बना सकते हैं, बाल्स बना सकते हैं। इसके अलावा जितने पैटर्न्स होंगे वो सारे के सारे जो है वो डिस्कार्ड कर दिए जाए। सो ये जो ड्यूअलिटी का पैटर्न है, ये जो ड्यूअलिटी एग्जिस्ट करती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर ही नजर आएगी। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज नॉट अवेलेबल इन, I must say you people, animal communication। उसके बाद 2 चीजें आपके पास नजर आती हैं, मतलब एक है क्रिएटिविटी एंड नीड ऑफ लर्निंग। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू पर आ जाएं तो ह्यूमन लैंग्वेज इज क्रिएटिव and there is a need to learn this language, कि इसको सीखने की जरूरत है। and if you think that without learning a language you would be able to communicate, it's almost impossible। but when we compare this thing to animals, we do find that there is no creativity at all in animal communication and there is no need of learning, कि वहां लर्निंग की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वहां पर लर्निंग की जरूरत नहीं है।
सपोज आप किसी भी सिंगिंग बर्ड को आप एक बंद कमरे में रख दें, और ये तजुर्बा हो भी चुका है, शैफनेच जो कि एक सिंगिंग बर्ड है, उसको एक साउंड प्रूफ रूम में बंद कर दिया गया बाकी शैफनेच की कंपनी से, तो उसके बावजूद भी वो उसने एक सॉन्ग जो है वो डेवलप कर लिया। नो डाउट उसकी साउंड अब नॉर्मल थी, लेकिन जो ही उसको अपने कंपनी में छोड़ा गया तो उसने अपनी साउंड जो है वो उन जैसी जो है वो प्रॉपर कर दी। जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि आप किसी जानवर को उसके पेरेंट्स से अलग भी कर देते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो कम्युनिकेट करेगा, चूंकि उसके अंदर वो इंस्टिंक्टिवली, उसकी इंस्टिंक्ट के अंदर ये सब कुछ मौजूद है। दैट्स व्हाई he would be able to communicate, it would be able, sorry, to communicate, but we the human beings, अगर किसी बच्चे को तन्हा किसी जंगल में छोड़ दिया जाए और वहां पर जस्ट उसको या गूंगे लोगों की कंपनी में, गूंगे और बहरे लोगों की कंपनी में रख दिया जाए, you would know कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। वो उनसे जितनी कम्युनिकेशन करेगा वो सारी की सारी इशारों कनायों की जबान में। तो हम इंसान अरेंज रीअरेंज, हम अपने फोनीम्स, मॉर्फीम, वर्ड, फ्रेजेस को आगे पीछे करके नंबर ऑफ आइडियाज जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। तो यहां नीड ऑफ लर्निंग और क्रिएटिविटी जो है वो एनिमल कम्युनिकेशन में मौजूद नहीं है। एनिमल्स जो है इनका क्लोज सिस्टम है, और क्लोज सिस्टम वो है कि इसके अंदर ये मजीद नई साउंड्स नहीं फिट कर सकते, जबकि हम इंसान जो हैं वो न्यू सिग्नल से नॉवल इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये वो मतलब एलिमेंट है, ये क्रिएटिविटी का एलिमेंट है और लर्निंग का। किसी भी बच्चे को तनहा छोड़ दें वो जुबान नहीं सीख पाएगा जब तक आप उसको बकायदा सिखाएंगे नहीं। एंड यू नो वेरी वेल, इट नीड्स टाइम टू लर्न अ लैंग्वेज।